Yeah, so okay, for I think most of the college students from KNIT, is that? And I mean, I think they are from first year and second year to be, I think, to be correct, or third year also. Hello, I'm audible. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Also, you can use like I don't know why chat is not showing. So in my options, like no chat is coming. So okay, so we will continue to start the session. We'll wait. I can see still the few students are joining. So I think we will let them join. And meanwhile, I will start with the today's agenda. I will share my screen and you can let me know if my screen is visible. And yeah, also regarding the language concern, tell me if you are comfortable in both English and Hindi. I will be proceeding with Hindi also. Otherwise, if it is fine that we can continue in English, I hope so. If it is not, let me use Hindi plus English, which is known as English, right? Okay. You can let me know when my screen is visible. Someone from the presenting team can confirm it. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. Yeah, yeah. I can see students are still joining. Okay. So let them join. Okay, sir. Yeah. So today's topic of the webinar, as you can see, we'll be discussing about robotics, automation, and AI. Okay. Uh, most of the students I'm considering right now are from first year and second year. Most of them, like first year, they are maybe starting their college journey. So obviously, best of luck to them in this long journey of 4 years BTech with KNIT. To me, also, it has been a very good experience. Like when I was in college, I learned there quite a lot. And also, similarly, I expect you all also that you will learn quite a more things and grow while you are in college because college time is the best as far as I can just tell you guys that till the time now, like been working for in this industry and the best times which I can recollect also right now are from the college times. Okay. सो केएनआईटी में जहां तक का मेरा सफर रहा है अब तक बहुत अच्छा रहा है और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी फैकल्टीज का हमारे डायरेक्टर सर का जिन्होंने ये इवेंट को वेबिनार को ऑर्गेनाइज करवाने में काफी सहयोग दिया है एलुमनाई सेल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं काफी जो प्रेजेंटर्स हैं हमारे केएनआईटी की तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंटर्स हैं ऑर्गेनाइजर्स हैं फैकल्टी मेंबर्स हैं जैसे अनिल सर उनको भी मैं काफी दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं इस सेशन के लिए सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से या सो मेरे बारे में तो ज्यादातर इंट्रोडक्शन दे ही दिया है जो प्रेजेंट कर रहे हैं फिर से चूंकि अभी कुछ लोग आ रहे हैं तो तब तक मैं दे देता हूं तब तक वो आ जाते हैं इंट्रोडक्शन फिर से तो स्टार्टिंग विद माई सेल्फ ऑब्वियसली यू नो माई नेम इज विश्वास and 2+ years of experience sorry and here like in HCL and obviously I'm working as a software engineer but as I told you that I was from electronics and electronics engineering branch yeah from KNIT so you can say I was from a non CS background so it is not that most people fear like when they are in first year and second year that I also like was one of them that who might not have got their favorite branches like initially like when I started to join in the first year like I did not get my desired branch like I had opted for computer science IT but I had got this electronics branch so it's no need that despite that you are allocated in any branch it's not that you cannot pursue your interests so right now you can see that despite coming from a non CS background I'm working as a software engineer
So still, if anyone of you has a passion, or who thinks that right now, sir, my branch is non CS background, I am from civil, okay, I am from mechanical, okay, can I uh, just compete those guys from computer science branch, or maybe IT branch, or can I pursue a career in the software branch? So obviously yes, because the things depends on your interest, okay. Whatever are you passionate about, and whatever are you just interested about, you can pursue it in any stage of time. You have 4 years, obviously. I'm not forcing you that anyone should start right in the first year itself or in the second year. So as I told you, like introduction has been given, I had also started being preparation for gate also. So obviously it was hard for me to transition my career as a software engineer based on my passion. But still, if the reason is that are you from a non CS background and can you become a software engineer, answer is yes. So obviously now it has been 2+ years working with HCL Technologies as a software engineer. So currently, let me tell you all about my role here. So in HCL, like we are working, like I'm working here as a developer. So when you just start your transition into the software engineering, when you work into the MNCs or when you work into the professional environment, uh, at entry level, or you can say there are majorly three types of roles. First is like a support role. Second is, you can say, testing based roles, which are normally given. And third and the last, which is almost most favorite of many of the CSIT guys, are that is the development role. So obviously first time when you are just entering, you cannot expect that someone will give you a development role, obviously, because you have just entered into the fresher market, and obviously you are just without experience. So right now I'm working here as a developer, okay. So my position is software engineer and I'm working as a role based developer. So we are working with the digital center of excellence, with the automation team right now with HCL, and we have been worked with like various of the clients like US, UK, and also with our internal projects. Also, we have just committed and done various internal projects. So that's far my professional journey is concerned till now. Right after the college, I was, you can say, directly got into this uh, placement scenario. And as rightly told, that I was having not only HCL offer, I got multiple offers. So obviously when you just enter into the any company, so initially they sign you up just a service agreement so that you can serve a company for a minimum period, say let's suppose 1 year. So here also, like when I joined HCL, so I got later on offers, but obviously I had filled up the service agreement of 1 year. So obviously I had to stay in this company. Until now, the journey has been very smooth and no other troubles have come. Like I was also expecting that I'm from non-CS background. So is it that it should be easy or difficult for me? Initially, I thought that difficult, it may be difficult for me to just move in this career. But obviously, nothing is impossible. And if you have that passion, if you have that interest, you can carry on. Okay, in whenever, whatever domain you like. In software engineering, also, there are multiple domains. So it is not that, like you have seen many of the guys, they are working in web development, full stack, backend. Okay, so similarly, many domains are there. Software engineering is not just a limited field, but it is a vast field, and various technologies are going on, and various you can say growth is being taking place every day. You can see every day some new technology is coming. So obviously, if you are excited, if you are passionate about technology, and if you feel that yeah, I am having interest, then definitely you can pursue your career in the field of software engineering. Yeah, so that was an introduction about myself. So let us try to see, okay, what is the agenda that we will cover in this today's webinar. Okay, so now we are starting with our today's topic. I hope uh, the motive is clear, and obviously the topics are already being told to you about what is this webinar about. Okay,
So in this, the agenda for this webinar, as you can see in this slide, okay, first, obviously in this 1 hour session, we will be dealing with majorly of these topics which you are seeing on the screen. First is like understanding what is robotic process automation. Second, misconception. Obviously, like when you work in a field, some of us like think that okay, this is how the thing works, but it is not majorly of the case that everything should work in a specific manner. टू बी क्लियर, सीधी सीधी भाषा में कि जब हम कहीं स्किल में काम करते हैं तो हमें पता होता है कि जैसे कुछ चीजें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, सेल्फ एज्यूम, कि ये चीजें हैं तो ऐसे ही होंगी, लेकिन हर समय वो चीज सही नहीं रहती है। जब भी अ, हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको टाइम के साथ, कि हो सकता है हम जिस चीज को उस तरीके से कर रहे हो वो हर समय सही ना हो, तो वही चीज होती है मिसकंसेप्शन। हम हर चीज को अपने तरीके से समझते हैं और कोशिश यही करते हैं कि अपने जो भी अपनी थ्योरीज बनाते हैं, अपने खुद से जो समझ होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो चीज को समझते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हम लोग उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, फिर उन गलतियों से सीखते हैं। तो सेकंड जो इसका टॉपिक है मिसकंसेप्शन, वो यही बोलता है कि मिसकंसेप्शंस क्या है। थर्ड जो चीज है बेनिफिट्स, ओके। हर चीज के जैसे आपको पता है बेनिफिट्स तो होंगे ही। अगर कोई टेक्नोलॉजी है वो यूज कर किया जा रहा है, काफी डिमांड में है, वो काफी ग्रोथ में है, तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे। सो दैट्स व्हाई बेनिफिट्स आर देयर, एंड बेनिफिट्स अलोंग विद एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस की वो टेक्नोलॉजी हम किस डोमेन्स में यूज कर रहे हैं, रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर्स में वो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही, जैसे आईटी इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, हमारी बिजनेस इंडस्ट्री हो गया, और कस्टमर इंडस्ट्री हो गया। सो ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे हम लोग देखते हैं कि वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट थिंग कम्स दैट लो कोड प्लेटफॉर्म टूल्स। अगर हम टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी है हम उसको यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम किसी ना किसी तरह का टूल यूज कर रहे होंगे या किसी ना किसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे टेक्नोलॉजी को। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट नाम सुना होगा, तो वेब डेवलपमेंट में आप एच टी एम एल, सी एस एस, ये सब कोड लिखते हैं। तो वैसे ही अ, हर चीज का कोई ना कोई करने का एक आईडी चाहिए होता है, या कोड चाहिए होता है, कोड वाले टूल्स चाहिए होते हैं जिसमें आप उसको कोड करके सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ऐसी इस टेक्नोलॉजी में भी इसके खुद के टूल्स हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि लो कोड प्लेटफॉर्म यूज किया गया है। तो चूंकि ये टेक्नोलॉजी एक बहुत ही फ्यूचर प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें फोकस किया जा रहा है लो कोड प्लेटफॉर्म पे। ऑब्वियसली इन द फ्यूचर कमिंग सेशन में अभी हम डिस्कस करेंगे लो कोड क्या होता है। अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं कि लो कोड से हमारा स्पेसिफिकली क्या मतलब है। नेक्स्ट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोस्टली सबको पता होगा, सबने सुन रखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉर्मली हर जगह क्रेज रहता है, और आने वाले टाइम में भी बूमिंग टेक्नोलॉजीज अभी से बूम कर रही है एआई। जैसे चैट जीपीटी नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि चैट जीपीटी के आने से काफी रूमर्स फैली हैं और काफी मिसकंसेप्शंस उससे भी आए हैं। और ये एक तरह का एआई का इम्पैक्ट है। जनरेटिव एआई का वर्ल्ड एक्सपोज हुआ है। एक नया टर्म यूज करते हैं एआई के साथ, जनरेटिव एआई, जो अब काफी इवॉल्व होके आ रही है टेक्नोलॉजी। और आगे चल के ऐसा एनालिटिक्स किया जा रहा है कि इसका ग्राफ जो है ऊपर जाना है ग्रोथ के टर्म्स में जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक देख रहे हैं, इंटीग्रेटिंग रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एंड एआई, कैसे हम एआई को हर फील्ड्स में इंटीग्रेट करते हैं। क्योंकि एआई है तो एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल हो जाती है, हर टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। और अगर उस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स हम लोग को ज्यादा देखने को मिलते हैं, और काफी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, काफी इंक्रीज ग्रोथ सीन होती है एआई के साथ। और सिमिलरली यही फ्यूचर है कि अगर हम किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि फ्यूचर में कैसे ग्रोथ चल रही है, एआई के साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं डेली टू डेली। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है मार्केट में, वो चीज आपको न्यूज में अपग्रेड होना चाहिए। उस
मार्केट में क्या नया आ गया, जैसे चैट जीपीटी, जीपीटी के मॉडल्स रिलीज हुए थे, जीपीटी 3.5, जीपीटी 4, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे जीपीटी 3.5 टेक्स्ट बेस्ड है, जीपीटी 4 जो अ, इनका जो मॉडल है उसमें हम टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस जनरेट करा सकते हैं, वीडियोस जनरेट करा सकते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी जनरेट करा सकते हैं। तो सिमिलरली जो डिफरेंस होता है वो दिन पर दिन इम्प्रूव हो रहा है। तो फ्यूचर यही है कि टाइम के साथ अगर कोई चीज है भी तो उसको अपग्रेड होना है और उसको कंटिन्यूअस काम जारी रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। इसी के साथ हमारा एजेंडा जो है आज के वेबिनार का वो डिस्कस हो चुका है और हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे टॉपिक का नाम है, इसमें obviously first of all when we talk about that what is RPA, basically robotic process automation को obviously हर टाइम पे हम उसका पूरा फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे, so we have just used an abbreviation for it that we will be calling in short as RPA. R stands for robotics, P stands for process, and A obviously stands for automation. So first of all we will just see that okay what RPA is collectively, that RPA जो terms हैं इसमें मतलब क्या है आरपीए टेक्नोलॉजी का, कैसे ये टेक्नोलॉजी उभर के आई और कैसे काफी लोग अ, ने नाम नहीं सुना होगा इस टेक्नोलॉजी का, या कुछ लोगों को पता भी होगा लेकिन वो डेली इस टेक्नोलॉजी से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और शायद उनको पता नहीं कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी को आरपीए कहते हैं, एंड दिस इज रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन. सो वी विल स्टार्ट that what is RPA. The term RPA, obviously, we have discussed. It stands for collectively for robotic process automation, which is used for automating the current workflows with the help of robots to reduce the human intervention at every point. So ये तो definition हो गई कि obviously robotic process automation, what is robotic process automation, that we are used for basically here it is trying to say that we are automating some workflows, or you can say some flows. There is a process, so we are just automating it, and you can see with the help of robots. So these three terms you can see easily it is understood that we are using some robots and then we are trying to automate a particular process. So that's it. That's the definition of RPA. हम लोग को इससे ज्यादा डेफिनेशन की नीड भी नहीं है. सो ऑब्वियसली इसमें जो थ्री टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं कलेक्टिवली, जिनको इंडिविजुअल मीनिंग होल्ड करते हैं, वो है रोबोटिक्स. यस, सो दिस इज फर्स्ट रोबोटिक्स, सेकेंड इज प्रोसेस, एंड थर्ड इज ऑटोमेशन. सो व्हाट इज रोबोटिक्स? Robotics, obviously, like the definition, obviously, most of you know that what is robotics. So, robotics, like machines, robotics are basically machine. Robots are machines. Everyone knows. So, machines that mimics the human activities and actions are called as robots. So, basically, यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी मशीन है जो ह्यूमन की तरह मिमिक कर रही है, या मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है, जो ह्यूमन एक्शंस हैं उनको हम लोग जब मशीन्स के थ्रू रिकॉग्नाइज कराते हैं तो उनको रोबोट्स कहते हैं. तो ये होता है रोबोटिक्स. प्रोसेस सेकंड हम जब मूव कर रहे हैं प्रोसेस पे, सो प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड और मीनिंगफुल स्टेप्स which is used to perform a particular task. Okay, so what is a process? So process जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हम रियल टाइम में अगर let's suppose मैगी बना रहे हैं, let's suppose take a real life example, we are going to the kitchen and we are preparing a dish or a recipe, and obviously there is some recipe written for it, that first you have to take these ingredients. Okay, then this should be in this order. मैगी है तो मैगी को हम लोगों ने पानी लिया, पानी में मैगी खोली, उसको डाला, देन उसका मसाला, मैगी मसाला लिया, उसको डाला, एंड देन फाइनली 2 मिनट्स बॉईल किया, एंड फाइनली मैगी इज रेडी. सो सिंपल, दिस इज अ प्रोसेस जिसमें हर चीज डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, एक एक उसका स्टेप हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है. इसमें प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो हमारा प्रोसेस वेल डिफाइंड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमारा कोई भी प्रोसेस किसी भी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है. लाइक हम एल्गोरिदम की बात करते हैं, अगर किसी ने सुना होगा एल्गोरिदम क्या होते हैं, बेसिकली एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है. कुछ भी
कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का। सिमिलरली यहाँ पे प्रोसेस की बात किया जा रहा है कि प्रोसेस है वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है, वो रियल लाइफ प्रोसेस हो सकता है, वो मैगी बनाना भी प्रोसेस हो, राइट, मैगी बनाना भी एक प्रोसेस है। सो प्रोसेस यहाँ पे हम वही काउंट कर रहे हैं जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है। वेल डॉक्यूमेंटेड मीन्स कि वेल डिफाइंड कर रखा है उनको पहले से, और हर एक चीज की कोई ना कोई स्टेप की मीनिंग है। एक मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नॉनसेंस टास्क कर रहे हैं उसको हमने बोल दिया कि ये प्रोसेस है, नहीं। कोई भी ऐसा टास्क जिसमें हम लोगों ने उसको डिफाइन नहीं कर रखा है, या कोई मीनिंग या आउटकम निकल के नहीं आ रहा उसका, तो वो प्रोसेस में नहीं आएगा। ये रियल लाइफ प्रोसेसेस की बात हो रही है, आप रियल लाइफ से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली एवरीथिंग हियर इज रियल लाइफ। रोबोटिक्स इज रियल लाइफ। यू विल सी मशीन्स, रोबोटिक्स, आपने रोबोट्स सब ऑब्वियसली मूवीज में देखे होंगे। हर जगह रोबोट्स क्या करते हैं, ह्यूमन जैसे होते हैं, वो कुछ एक्शंस कर रहे हैं, कुछ टास्क कर रहे हैं। आजकल काफी रेस्टोरेंट्स है उसमें रोबोट्स, फिजिकल रोबोट्स यूज किए जाते हैं। लाइक वेटर्स होते हैं तो ये रोबोट्स क्या करते हैं, खाना सर्व करके लाते हैं। जो डेजिग्नेटेड जिसने ऑर्डर किया होता है उसकी जस्ट डेस्क पे जाके उसको ऑर्डर सर्व कराते हैं। सो दिस इज रोबोटिक्स। प्रोसेस मीन्स कि एक प्रोसेस हमारे पास वेल डिफाइंड है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, वो रियल टाइम प्रोसेस भी हो सकता है जो कि मीनिंगफुल है। हम उससे एक वेल डिफाइंड चीज कर रहे हैं, हम उससे कोई नॉनसेंस टास्क नहीं कर रहे हैं, हम उससे कुछ एब्सर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है एक प्रोसेस। आई होप इट्स क्लियर। ऑटोमेशन मींस, ऑटोमेशन एज most of you must be familiar what is automation is. If someone who is not knows automation, no need to worry, we will discuss automation also. What is automation? So automation, here it is written, any process which is done automatically without any human intervention and provides high degree of accuracy. Basically automation क्या है, कोई भी टास्क को जो ऑटोमेटिकली किया जा सके। ऑब्वियसली ऑटोमेशन में ऑटो वर्ड यूज किया जा रहा है। ऑटो मतलब वो वाला ऑटो नहीं जो हम जिससे जाते हैं। ऑटो मीन्स इंग्लिश वर्ल्ड में ऑटो का मतलब होता है मीन्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कोई प्रोसेस है उसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं, मतलब वो प्रोसेस पहले अगर ह्यूमन के इंटरवेंशन से हो रहा था तो अब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस हो जाएगा। जैसे लेट सपोज मैगी बनाना एक प्रोसेस है, तो अभी हम इन्वॉल्व हैं उसमें। हम खुद मैगी का पैकेट खोल रहे हैं, हम उसमें मसाला डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, एंड देन फाइनली हम वेट कर रहे हैं, एंड देन फाइनली मैगी हम ही सर्व कर रहे हैं और हम ही खा रहे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन है, बेसिकली मैगी ह्यूमन ही बना रहा है। अगर हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें, मैगी बनाने को ऑटोमेशन कर दिया, मतलब ऑब्वियसली यू नो ह्यूमन इंटरवेंशन को हटा दिया हमने, मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैगी अपने आप बने, अपने आप रेडी हो जाए और अपने आप सर्व हो जाए। तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस भी रियल टाइम देखा है आपने। लाइक आप स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं, तो आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर इनिशिएट हुआ, वो जाएगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके रेस्टोरेंट में या होटल में, वो होटल आपका प्रोसेस करेगा और वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली एक कोरियर के जो आपका पर्सन होगा डिलीवरी। बचते हैं कि हम किसी टर्म को फुल्ली एक्सपैंड करने से, तो हम उसको शॉर्ट करके उसका एक एक्रोनिम दे देते हैं। जब आप रियल लाइफ में वर्क करोगे, आप किसी एमएनसी के लिए काम करोगे, आप किसी स्टार्टअप्स के लिए काम करोगे, आप किसी अदर कंपनीज के लिए काम करोगे प्रोफेशनल वे में, और अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली डे टू डे एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू मेक आवर वर्क इजियर एंड सिमिलर विद आवर लैंग्वेज ऑल्सो। यहाँ पे हम ऐसे वर्ड्स, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो कि क्रिस्प हो, शॉर्ट हो और प्रिसाइसली अंडरस्टूड हो कि हाँ अच्छा शॉर्ट में ये ठीक है, समझ गए। सो वैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर रोबोट्स को हम एक टर्म दे देते हैं बॉट्स। चूंकि अर्लियर जब ये फील्ड की डिफाइन किया था हमने, तो हम यूज करते थे रोबोट्स, तो ये रोबोट्स टर्म पड़ा सॉफ्टवेयर रोबोट्स। इसको और क्लियरली डिफाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने रोबोट्स के आगे सॉफ्टवेयर टर्म लिख दिया। ओके, सो दैट कोई कंफ्यूज ना हो कि हम यहाँ पे कोई फिजिकल रोबोट नहीं बनाने वाले, आपको कोई ह्यूमनॉइड बना के नहीं दे देंगे, नहीं।
ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम रोबोट्स के आगे यूज कर देते, स्पेसिफाई कर देते सॉफ्टवेयर लगा के, सॉफ्टवेयर रोबोट्स। इसको अगर और क्लियर किया जाए तो हम बोल देते सिंपली एज बॉट्स। ओके, सो हियर सॉफ्टवेयर रोबोट्स आर नोन एज बॉट्स। अब बॉट्स से लोग कंफ्यूज हो गए कि बॉट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है बॉट्स के। तो बॉट्स ऑब्वियसली कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे चैट बॉट्स होते हैं। लाइक चैट बॉट्स इज अ सॉफ्टवेयर रोबोट ओनली। चैट बॉट्स मोस्टली आजकल हर प्लेटफॉर्म में है, तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मोस्टली लोग यूज इंटरनेट यूज ही करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, मे बी सोशल नेटवर्किंग साइट्स चलाते हैं, तो आजकल ऑलमोस्ट हर सोशल नेटवर्किंग साइट या हर वेबसाइट पे एक चैटबॉट तरह का फीचर होता है। तो ये चैटबॉट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सॉफ्टवेयर रोबोट ही होता है। सो द चैटबॉट इज अ सॉफ्टवेयर रोबोट दैट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ चैट्स, मैसेजेस और टेक्स्ट। ये चैटबॉट की डेफिनेशन है कि बेसिकली अ चैटबॉट इज अ सॉफ्टवेयर रोबोट दैट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग assistance in the form of chats, messages, और you call in short as text. Okay, तो ये होती है सॉफ्टवेयर रोबोट्स की डेफिनेशन। सिमिलर, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस। प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट प्रोसेस इज अ बिजनेस प्रोसेस aimed at solving real life business problems and real case scenarios. Here, real time business process can be easy, medium, or complex. So in RPA, we aim at end to end coverage of complete business process that happen in real time and may involve multiple domains, scopes, and applications that may be involved. So technical definition है ये, that process की हम एज अ लेमैन बात कर लिए या प्रोसेस की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सो ये डेफिनेशन दे रखी है, दैट प्रोसेस यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक बिजनेस प्रोसेस है। यहाँ पे हम वेरियस क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, एक बिजनेस गोल, एक रियल टाइम प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम और वेरियस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास वेरियस रियल केस आते हैं, रियल लाइफ केसेस आते हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज आते हैं, हम कैसे उसको इंप्लीमेंट करके प्रोसेस के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली जब हमको प्रोसेस मिलेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस को क्लासिफाई कर दिया जा रहा है, दैट प्रोसेसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनको क्लासिफिकेशन दे देते हैं, इजी, मीडियम और कॉम्प्लेक्स। सो उन क्लासिफिकेशन पे बेसिकली ये लेवल है कि प्रोसेस को एक कैटेगराइज कर दिया इस लेवल पे, इजी, मीडियम, कॉम्प्लेक्स, ये हमारे प्रोसेसेस के लेवल्स होते हैं। सो इन आरपीए, अगर आरपीए की बात करें तो वी एम एंड टू एंड कवरेज ऑफ कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस। यहाँ पे हम स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोसेस को ऑटोमेट करना, ये है आरपीए का गोल। आरपीए मतलब रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ओके, सो यहाँ पे हम एंड टू एंड का मतलब होता है स्टार्ट टू एंड। एक प्रोसेस है तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस कहीं स्टार्ट स्टेज होगी उसकी, कहीं ना कहीं वो प्रोसेस खत्म हो रहा होगा। तो यहाँ हम मोस्टली टारगेट करते हैं कि एंड टू एंड ऑटोमेशन किया जाए उसका। अब एंड टू एंड प्रोसेस में बहुत सारी डोमेन्स में प्रोसेस यूज हो सकता है, वी विल डिस्कस। ओके, और काफी उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, एंड सिमिलरली एप्लीकेशंस काफी यूज हो सकता है एप्लीकेशंस का, दैट मे बी एक प्रोसेस है उसमें हम डेटाबेस भी यूज कर रहे हैं। अगर आपने हर्ड किया होगा व्हाट इज डेटाबेस, जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं बेसिकली। सो एक प्रोसेस है उसमें हम कोई एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे ऑटोमेट करते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट आरपीए इज नॉट लिमिटिंग टू एनी डिजाइन ऑफ फ्रंट एंड और बैक एंड, बट कवरिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड टू एंड ऑटोमेशन गोल। सो थर्ड पॉइंट भी सेम चीज कह रहा है कि यहाँ पे आरपीएम बेसिकली हम कोई फ्रंट एंड या बैक एंड नहीं डिजाइन करने बैठे हैं एप्लीकेशन का, यहाँ पे हम कंप्लीट प्रोसेस डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड टू एंड। तो यहाँ पे हमको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ सकता है। आउट ऑफ बॉक्स मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिमिलरली एक विजन के तौर पे ब्रॉड, मतलब इससे भी कुछ और हो सकता है, वो सोचने की क्षमता होनी चाहिए। बेसिकली क्षमता भी नहीं, ऐसा हो सकता है, ये आपको प्री एज्यूम करके रखना है पहले से कि हम कोई लिमिट नहीं करनी कि हम सिर्फ एप्लीकेशन का ही डेवलपमेंट देखेंगे, बाकी हम किसी प्रोसेस को, ऑब्वियसली प्रोसेस है तो उसमें कई सारे स्टेप्स होंगे जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप को, प्रोसेस में जितने भी स्टेप है सबका एंड टू एंड ऑटोमेशन आपका गोल होता है। इसमें आपकी एप्लीकेशन भी हो सकती है, जैसे एक स्टेप है हमारा उसमें हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं,
सेकेंड स्टेप है उसमें हम एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। थर्ड उसी प्रोसेस का स्टेप है उसमें मे बी हम कोई इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं। सो ये सब बज़ वर्ड्स आपको लग सकते हैं लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन सब में। मोस्टली लोगों को पता भी होगा कि ये सब टर्म्स क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। बेसिकली एक्सेल अगर हम यूज कर ले, हमें अगर कोई डेटा स्टोर करना है तो हम एक्सेल शीट्स बनाते हैं। सो सिमिलर हेयर ऑल्सो, एक्सेल को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। कोई इन्वायरमेंट है, कोई मशीन है, मशीन्स जैसे फिजिकल, अभी आप जो फिजिकल मशीन्स यूज करते हैं, मे बी लैपटॉप, आप लैब में जाओगे वहां पे फिजिकल सिस्टम्स होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं। तो ऐसे ही अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो कि लेट सपोज फॉरेन क्लाइंट है, तो वहां आपको मशीन वो फिजिकल दे पाना इतना मुश्किल नहीं है। तो वहां टर्म आता है वर्चुअल मशीन का। सो वो वर्चुअल मशीन अलाइन कर दी जाती है। सो वो वर्चुअल मशीन का आप ऑटोमेशन करते हो और वो वर्चुअल मशीन बेसिकली क्लाउड पे होस्टेड होती है। सो ये होता है वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली लेट्स सपोज मैंने एक क्लाइंट के लिए काम करा, वो यूके का क्लाइंट था। अब ऑब्वियसली यूके का क्लाइंट है तो उसका एनवायरनमेंट अलग होगा। मे बी दैट देर इज वन बैंक इन यूके। ओके, सो वी आर वर्किंग फॉर लेट सपोज आवर क्लाइंट इज अ बैंक। अब वहां ऑब्वियसली वो जब हम उनके लिए काम करेंगे तो एक हमको सिस्टम अलॉट करेंगे, बिना सिस्टम के तो काम कर नहीं सकते। तो वो सिस्टम अगर हमको अलॉट करेंगे तो वो सिस्टम ऐसा तो नहीं कि हमको वो, ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में हो, आप देखते हो मे बी अगर आप लिंक्डइन चलाते हो कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन की तो वो आपको एक फिजिकल लैपटॉप देंगे। अब लेट सपोज आपका क्लाइंट ओवरसीज क्लाइंट है, अब वो आपको फिजिकली लैपटॉप थोड़ी प्रोवाइड करेगा। उसके लिए तो फिर एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, ओवरसीज एक्सपेंस आ जाएगा, मे बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम भी कोई इशू हो सकता है। तो वो सब चीजें अवॉइड की जाती हैं। वो बेसिकली एक वर्चुअल मशीन के थ्रू कॉन्सेप्ट आता है कि वहां पे वो आपको एक वर्चुअल सिस्टम अलॉट कर देंगे। तो ये वर्चुअल सिस्टम एक क्लाउड पे होता है। आप अपने कंपनी के लैपटॉप से उस वर्चुअल सिस्टम को एक्सेस करेंगे और वहां पे डेवलपमेंट करेंगे। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट स्लाइड, बेनिफिट्स। सो हम बात करते हैं कि इस इंटायर डिस्कशन में बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं। बेनिफिट्स ऑब्वियसली बिना बेनिफिट के तो कोई काम करना ही बेकार है। आप भी अगर कोई काम करोगे तो आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। हर इंसान यही चाहता है एट द एंड कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ उसको फायदा मिले। सिमिलरली टेक्नोलॉजी का भी गोल्स होता है। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो उसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी आगे चल के डिविएट कर जाएगी, मतलब टाइम के साथ वो खत्म हो जाएगी अगर उसके बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हैं लोगों को। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हैं स्लाइड की स्क्रीन पे बहुत बेनिफिट्स है। कुछ बेनिफिट्स ऐसे जो स्लाइड्स में भी नहीं मेंशन, मतलब इतने बेनिफिट्स हैं कि अब मेन मेन बेनिफिट्स हम लोगों ने इंक्लूड कर दिए हैं। सो बेनिफिट्स इज फर्स्ट रिड्यूसेस बर्डन ऑन आईटी। अब हर कंपनी में एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, कॉलेज में भी होता है। सिमिलरली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहां पे भी आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि डेली काफी हेक्टिक काम होता रहता है। तो वहां पे जो अंडरलाइन सिस्टम्स होते हैं वहां पे इतना बर्डन कभी कभी बढ़ जाता है। तो वहां पे वो टाइमली इश्यूज नहीं रिजॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम अगर वही चीज को हम अगर ऑटोमेशन कर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका वर्कलोड कम होगा और सिमिलरली टाइम भी बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा और सेम टाइम उनका भी टाइम बचेगा। सो फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज रिलायबिलिटी। Reliability, obviously here it is written, bots can work 24 cross 7 effectively. So here we are using the term bots. So short में सॉफ्टवेयर रोबोट्स की जगह बॉट्स बोल रहे हैं। बॉट्स कैन वर्क 24 क्रॉस इफेक्टिवली। कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर रोबोट्स बोल दें, वो उनसे आपको कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली ह्यूमन लिमिटेशन होती है कि जैसे आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो बेसिकली आपका एक टाइम होगा काम करने का कि मैं 8 आवर्स काम करूंगा। कंपनी आपको देगी कि ये आपका रोल है, इसमें आपको 8 आवर्स या 9 आवर्स काम करने हैं। तो वो 9 आवर्स आप काम करोगे, उसके बाद जो आपका रूटीन है, जो और काम है, आपके पर्सनल काम है, वो आप वो कर सकते हो। बॉट सॉफ्टवेयर रोबोट्स के साथ ऐसा नहीं है। इनको आप 24 क्रॉस 7 यूटिलाइज करो। ये कभी थकते नहीं है, ये कभी मना नहीं करते हैं ह्यूमंस की तरह, ये कभी चिड़चिड़े नहीं हो जाएंगे
कि ये क्या आप काम देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड दीज आर रोबोट्स, सॉफ्टवेयर रोबोट्स। सो इन्हीं को शॉर्ट में कह रहे हैं बॉट्स कैन वर्क 24/7 इफेक्टिवली। थर्ड इज कॉस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी। सो इट reduces the cost by reducing the size of manual workforce. अब ऑब्वियसली मैनुअल वर्कफोर्स, जैसे हम आईटी की बात कर रहे थे, आईटी में लेट सपोज हमारे एम्प्लॉइज काम करते हैं और हमारा जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको, मे बी कोई भी रिक्वेस्ट के रिलेटेड कंप्लेंट्स या कुछ भी, कोई भी टास्क उनको असाइन किए जा रहे हैं, वो लेट सपोज ज्यादा है, तो उतना वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं आरपीए के थ्रू, तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर रोबोट्स की वजह से एक तो उनका वर्कलोड कम हो गया कि भाई मोस्ट ऑफ द काम ऑटोमेट हो चुका है, तो ऑब्वियसली उनका जो हम लोग कॉस्ट है वो कम कर दे रहे हैं। अब हमको उतना नहीं हायर करना है। अगर हमें जरूरत थी, लेट सपोज हमारा टीम थी 5 लोगों की आईटी में, लेट सपोज मान के चलते हैं, और अगर हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है तो हमें नए बंदों को हायर करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। यहाँ पे अगर हमने उसी काम को ऑटोमेट कर दिया है, तो ऑब्वियसली हमें जरूरत नहीं है किसी एडिशनल सेम काम को करने के लिए। हमने ऑटोमेशन कर दिया, तो ऑब्वियसली हम ऐसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, मैनुअल वर्कफोर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। फोर्थ इज नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द गाइस के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेशली फर्स्ट ईयर में है जो है, सेकेंड ईयर में जो है, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है टाइम के साथ। मैंने भी 2 इयर्स के एक्सपीरियंस में काफी कुछ चीजें, काफी कुछ चेंजेस देखे हैं इन प्लेटफॉर्म्स में। तो बेसिकली आगे चल के भी ये इंडस्ट्री ग्रो ही करनी है। सो जो कॉन्सेप्ट आता है नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म का, इसमें चूंकि लिखा है ऐसे, पहले हम रीड कर लेते हैं। नो कोड low code platform means no coding required to use RPA tools. A person need not to have programming skills. So ये फेवरेट हो जाता है। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा था, ऑब्वियसली मैं नॉन सीएसआईटी से था, सो मुझे इतना प्रोग्रामिंग का डीप में आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं नॉन सीएस से था। तो जो डिटेल में डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स जो यूज डेली, जो कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो नॉन सीएस वाले इतना नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्या है, ये बेस्ट हिट हो जाती है उनके लिए। सो ये टेक्नोलॉजी उनसे मैच कर जाती है, जहां पे ऐसा मेंशन किया जा रहा है कि नो कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू यूज आरपीए टूल्स, अ पर्सन नीड नॉट टू हैव प्रोग्रामिंग स्किल्स। सो यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर जैसे लेट सपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुना होगा, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आजकल का टाइम ये है कि सब लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पीछे भाग रहे हैं। कोई पाइथन सीख रहा है, कोई जावा सीख रहा है, कोई सी प्लस प्लस सीख रहा है, कोई नई लैंग्वेज आ गई, लेट सपोज पर्ल आ गई, गोलैंग आ गई, तो आप फिर जावा छोड़ के गोलैंग सीखोगे। सो ये चीज तो चलता ही जाएगा। आगे चल के कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, अभी जैसे गोलैंग फेमस हो रही है, सिमिलरली आगे चल के कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी। तो ये चीज डायनेमिक होती है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, किसी लैंग्वेज को टारगेट करके करो, तो फिर वो आगे चल के इम्पैक्टफुल देगा। अगर वो लैंग्वेज की डिमांड कम हो गई, तो वो डायरेक्ट आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि लो कोड प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम लिखा है नो कोडिंग, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। नो कोडिंग का मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है और आप चले गए और आप कर ले गए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लो कोड की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एक एप्टीट्यूड आना चाहिए, आपको एक प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग का जिसको कहते हैं कीड़ा होना चाहिए। अगर आपके मन में है कि रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, अगर आप रियल लाइफ प्रॉब्लम से लेट सपोज डील कर रहे हैं, आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम असाइन की जाती है, हम यहाँ पे कोडिंग प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम रियल लाइफ से भी सिचुएशन हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपके एकेडमिक्स से भी जस्ट मैच कर सकती है। तो वो बेसिकली आप प्रॉब्लम्स को डील कैसे करते हो, वो एप्टीट्यूड और वो पैशन और कैलिबर आप अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो।
सो यहाँ पे उतनी प्री रिक्विजिट चाहिए आपको, मिनिमम लॉजिक्स बिल्डिंग आपको चाहिए कि आप बेसिकली लॉजिक्स सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। यहाँ पे नो कोडिंग का मतलब ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे हम कोई पाइथन का यूज स्पेसिफिकली नहीं करने वाले, यहाँ पे हम कोई जावा का कोड नहीं लिखने वाले, तो बेसिकली यहाँ पे फिर करेंगे क्या? सो यही इशू आ जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। जैसे हम प्रोसेस की बात किया, प्रोसेस क्या हमारा वेल डिफाइंड प्रोसेस होगा, हर जगह उस वो उसको क्लियरली डिफाइन कर रखा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लो कोड नो कोड की बात कर रहे हैं, तो यही फ्यूचर है। आप देख रहे हैं चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी को आप एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि राइट मी अ कोड इन जावा टू डू दिस दिस दिस, वो करके दे देगा आपको। वो भी आई थिंक मैक्स टू मैक्स कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में। अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा आपका प्रॉब्लम होगा तो वो फिर 2-3 मिनट ले लेगा, वरना नॉर्मल प्रोग्राम तो वो ऐसे ही कुछ मिनट, एक एक 2 मिनट के अंदर ही कर देता है। तो यही इशू आ गया। अब क्या हो गया कि अब हमारे पास ऐसे ऐसे एआई आ चुके हैं जो प्रोग्रामिंग करके दे दे रहे हैं आपको। आपको एचटीएमएल लिखना है, वो खुद एचटीएमएल कोड लिख के दे देगा। आप उस पे 1-2 दिन में लगे हुए हो, वो आपको 2-3 मिनट में ही करके दे दे रहा है। आपको 2-3 दिन हो गए आप नहीं कर पा रहे हो। सो ये चीज होता है आगे फ्यूचर में, ये इम्पैक्ट करती है आगे चल के। तो ये क्या है, अब जो लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पे बेसिकली आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए इसके। आप एक एल्गोरिदम बेस्ड टारगेट कर रहे हो, आप एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हो, उस लॉजिक को आप कनेक्ट करके एक वेल डिफाइंड प्रोसेस बना रहे हो, उसको आप ऑटोमेट करके। आरपीए में वेरियस टूल्स होते हैं, इन्हीं टूल्स के हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं लो कोड और नो कोड टूल्स। लास्ट क्या है, एक्यूरेसी। ऑब्वियसली सबको पता है मशीन्स ज्यादा एक्यूरेट होती हैं ह्यूमन से। वी ह्यूमंस वी कैन मेक मिस्टेक्स, बट आई एवरीवन नोज इट, कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन टाइम, सेम थिंग। जैसे चैट जीपीटी, आपको 2 दिन लग गए प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उसने 2 मिनट में कर दिया, तो ये मस्ट फास्टर हो गया, ये फास्टर अप्रोच है। इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इट लेट्स द एम्प्लॉय टू फोकस ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। अब क्या है, सॉफ्टवेयर रोबोट्स मोस्टली रेपिटेटिव मैनुअल बेस्ड टास्क कर रहे हैं, तो अब वो जो एम्प्लॉय हो गया वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकता है। अगर आपकी जॉब ये है डेटा एंट्री की, लेट्स सपोज आप जॉब है, आप किसी कंपनी में गए एज अ प्लेसमेंट, वहां पे आप खुश होके गए, और एट द एंड कर क्या रहे हो, आप एक्सेल भर रहे हो या कुछ फालतू टाइप का काम कर रहे हो, जिससे आपको भी पता है आपको खुशी नहीं हो रही है। आपको दिया गया कि आपके मैनेजर ने आपको काम दिया, ये लीजिए 100 डेटा, इसको एप्लीकेशन में इंटर कर दीजिए। वही आपके 100 या मे बी 100 तो मैं कम बोल रहा हूँ, शायद एक एक एक्सेल में मे बी 500-1000 डेटा भी हो सकता है। तो फिर वो आप टाइप करते बैठ जाओ, वो आपका ऐसे ही 5-6 घंटे वही ले लेगा। तो ये क्या है, ये डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये सब काम नहीं कर रहे हैं, हम ये काम सॉफ्टवेयर रोबोट्स के थ्रू करवाते हैं। बेसिकली जितना भी रेपिटेटिव प्रोसेस है, ऐसे मुंडेन टास्क हो गए, वो हम काम ऑटोमेट कर देते हैं। ये काम हमारे सॉफ्टवेयर रोबोट्स करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्टिव टास्क कर सकते हैं, हम कुछ बेटर वर्क कर सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग लेस प्रायोरिटी टास्क। सो ये हो गए थे हमारे बेनिफिट्स। नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशंस की तरफ, कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के। सो यहाँ हम देखते हैं कि वी आर यूजिंग आरपीएन कस्टमर सर्विस टू ऑटोमेट service order management and quality to provide quality reporting. Next, when we are using travel and logistics, like we are booking a ticket, we are entering passenger details, we are doing some accounting. So here also RPA is implemented. Next, we come to human resources, like new employees joining formalities. Like let's suppose you are joining into a new organization. You got a placement, तो यहाँ पे क्या होगा, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो वहां कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, आपकी ऑन बोर्डिंग होगी उस कंपनी में। फिर अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हो तो वहां आपकी ऑफ बोर्डिंग होगी। तो ये प्रोसेसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली जहां भी प्रोसेस की बात आ गई, वी विल यूज आरपीए। सो प्लीज म्यूट योर माइक। या
सो ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे कि हम बात कर रहे थे, ज्वाइनिंग, ऑफ बोर्डिंग, आपकी पेमेंट, पेरोल प्रोसेसिंग। अब आपको पता है आपकी सैलरी आनी है, लेट्स सपोज लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ हम लेते हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी का सीईओ नहीं बैठा होगा जो आपको, या एचआर डिपार्टमेंट जो आपको कहेगा कि ठीक है चलिए आपने अकाउंट दिया, अब हम फिजिकली जाके पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं आपके अकाउंट में। नो। सो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। सो कैसे होती हैं ऑटोमेटिकली? वो आरपीए टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके किया जाता है। तो ये सबको पता है कि ये सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि एट द एंड उसको बोलते क्या है। वो उसको टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। बेसिकली आपकी ऑनबोर्डिंग से लेके आपकी ऑफबोर्डिंग तक आपकी सैलरी आ रही है आपके अकाउंट में, तो वो ऑटोमेटिकली आएगी। ऑब्वियसली उसका हो सकता है एक टाइम हो आपके, एक टाइम कभी कभी होता है कि मोस्ट एम्प्लॉयज को एक टाइम पे सैलरी आती है, टाइम्स भी अलग अलग हो सकते हैं, वो सब चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। तो वही सब चीजें आरपीए में आती हैं। हेल्थ केयर, पेशेंट्स रजिस्ट्रेशन, क्लेम्स, बिलिंग, हेल्थ केयर में भी काफी यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज, जहां तक आप, इट कैन बी यूज फॉर कार्ड एक्टिवेशन, आप कोई कार्ड एक्टिवेट करा रहे हो, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, मे बी एनीथिंग, सब में आरपीए यूज होता है। आप कोई प्रोसेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उससे रिलेटेड ऑटोमेशंस, क्लेम्स कर रहे हो, कुछ फ्रॉड रजिस्टर करा रहे हो, तो हर चीज ये सब प्रोसेसेस में आ जाते हैं। कोई डिस्कवरी है, सब प्रोसेसेस में आप आरपीए इंप्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉक अबाउट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जैसे मोस्टली पता ही होगा, चेंज ऑफ एड्रेस, लाइसेंस रिन्यू करा रहे हैं आप, लेट सपोज एड्रेस चेंज करा रहे हैं आधार के थ्रू में भी, तो वो सब चीजें ऑटोमेटिकली सेट होती हैं, सब ऑटोमेटेड होती हैं। सो कैसे होती हैं? आरपीए के थ्रू ही होती हैं। लाइसेंस रिन्यू करा रहे हो, रजिस्टर करा रहे हो, सो ये सब डिफाइंड प्रोसेसेस है। जहां भी प्रोसेस डिफाइंड हो गए, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो ऑटोमेटिकली उनको कर ही रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर रोबोट्स करते हैं, उन्हीं को आरपीए कहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि हमारा है लो कोड प्लेटफॉर्म और टूल्स की बात करें कि आरपीए 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 आप कर रहे हो, लेकिन आरपीए आरपीए बिल्ड कैसे होता है? सो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में अगर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, हम इसको बिल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ टूल्स यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं लो कोड प्लेटफॉर्म्स में आ जाते हैं। सेम, तो यहाँ पे हमारे जो लो कोड प्लेटफॉर्म्स, जो टूल्स हैं in the global market, out of the various platform tools available in the global market of RPA, here we will cover here the most popular three tools to implement robotics process automation technology. So यहाँ पे ये जो लो कोड प्लेटफॉर्म होते हैं, टूल्स होते हैं, इन टूल्स की मदद से आप सोल्यूशन, सॉफ्टवेयर रोबोट्स डेवलप करते हो, उनको डिप्लॉय करते हो, उनको आप टेस्ट भी कर सकते हो। इवन अपने सिस्टम पे भी, आपको कोई ऐसा नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तभी आपको यूज पड़े, नहीं, आप अपने ऑटोमेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। लेट सपोज आपको टिकट बुक करना है आपका अपना, तो आप इन टूल्स की मदद से आप एक ऑटोमेशन डिजाइन कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर रोबोट जाएगा, लेट सपोज आईआरसीटीसी की साइट पे गया वो, उसमें अपने उसने लॉग इन किया, लॉग इन के बाद डिटेल्स डाले, डिटेल्स डालने के बाद टिकट बुक किया, और आपका टिकट बुक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे थ्री टूल्स जो है मेजरली यूज कर रहे हैं हम लोग फॉर लो कोड प्लेटफॉर्म्स, जिनसे हम आरपीए इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट इज यूआई पाथ। सो ये यूआई पाथ ऑब्वियसली, तुम भी बोलो। कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? Someone is audio is coming. इससे पहले पता है क्या हुआ है? इन्होंने ना कोशिश तो की भाई गाड़ मारने की, पर पहले हमारे खतरे बच्चे। Someone's this mic is open. So yeah, I would insist that he should uh, just mute it. Yeah. So first tool यहाँ पे हम explain करते हैं UI path. So UI path क्या है? लो कोड प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली ये एक ऐसा टूल है जो सिंपल, फ्रीली अवेलेबल टूल आवाज
Hello, am I audible now? Yeah, anyone can confirm? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I was talking about low code platforms. So let me just recap it. So low code platforms से हम implement करते हैं RPA को. Basically, how we build RPA, first tool is in the low code platform we are talking is UiPath. So UiPath is a free tool, so anyone can just download it like a setup file and then install it, and then you can just see the components and how you can just see the overview. Okay, so it consists of three parts. First is Studio, second is Robots, third is Orchestrator. So Studio, इससे हम डेवलप करते हैं अपने ऑटोमेशन को. रोबोट्स के थ्रू हम डिप्लॉय करते हैं. रोबोट्स मतलब सॉफ्टवेयर रोबोट्स, उसके थ्रू हम डिप्लॉय कर देते हैं किसी भी मशीन में. एंड थर्ड इज ऑर्केस्ट्रेटर, मींस उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपने रोबोट को कब चलाना है, हमें अपने रोबोट को कब डिप्लॉय करना है, उसके थ्रू हम ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. सेकेंड टूल इज ब्लू प्रिज्म. सो ब्लू प्रिज्म सेकेंड लिस्ट पे नाम आता है. ये एक लाइसेंस टूल है जिसमें हम डेटाबेस के लिए सीक्वल सर्वर यूज करते हैं जहां पे डेटा स्टोर होता है, और एक लर्निंग लाइसेंस अवेलेबल है ताकि जिसको एक्सप्लोर करना है टूल्स को, तो डेवलपर किसी को कोई डेवलप करना है ऑटोमेशन, तो वो इस पे जाके इसकी इस पे डेवलप ऑटोमेशंस को रन और एग्जीक्यूट या डिप्लॉय भी कर सकता है. ये इसका आर्किटेक्चर है. हर एक टूल का अपना खुद का आर्किटेक्चर होता है, लेकिन एट द एंड टेक्नोलॉजी दैट इज आरपीए. हर टूल बेसिकली रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन को टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करता है. हर टूल इज ऑटोमेशन एनीवेयर. सिमिलरली इसके आर्किटेक्चर में भी क्लाइंट है, बॉट्स है, कंट्रोल रूम है. सेम है ऑलमोस्ट. क्लाइंट मतलब हमें किसी जगह पे अपना ऑटोमेशन डिप्लॉय करना हो, रोबोट्स जो हम डेवलप करेंगे अपनी ऑटोमेशन को और एग्जीक्यूट करेंगे सॉफ्टवेयर रोबोट्स की हेल्प से. कंट्रोल रूम मींस अगर हमें ऑटोमेशन को कंट्रोल करना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने रोबोट को कब चलाना है, कब एग्जीक्यूट करना है, उसको शेड्यूल करना है, तो वो हम कंट्रोल रूम कंपोनेंट होता है उसके थ्रू करते हैं. यहाँ पे जो डेटाबेस का टूल है वो सीक्वल एक्सप्रेस पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. सो ये तीन मेजर टूल्स हो गए. तीनों टूल्स आरपीए में यूज होते हैं मेजरली, और तीनों टूल्स के आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. बट यस, जब हम आर्किटेक्चर के पॉइंट पे आते हैं तो आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टूल्स का, बट बेसिकली एंड टेक्नोलॉजी जो इंप्लीमेंट हो रही है वो सेम है, दैट इज आरपीए. नेक्स्ट वी कम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादातर सबको पता ही होगा क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस. ह्यूमन इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं तो उसमें जैसे रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, कैपेसिटी टू एनालाइज फास्ट डेटा सेट्स, मेक डिसीजंस, improve process industries, revolutionizing how we work and live. So basically हर जो रेवोल्यूशन चल रहा है बेसिकली कहीं ना कहीं उसमें एआई का हाथ होता है. सो एआई रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज हो रहा है? ऑब्वियसली एआई इज यूज्ड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक पर्सनल असिस्टेंट्स है जो आपके मोबाइल में भी होंगे, एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट, उसे सब बेसिकली एआई को ही इंप्लीमेंट करते हैं. सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, उसमें भी एआई सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है. फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर आते हैं. हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर जैसे आप कहीं पे दिखाने गए, मशीन्स होती हैं जो आपकी टेस्टिंग करती हैं तो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देती है, वहां भी एआई ही यूज होता है. रिकमेंडेशन सिस्टम्स, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, यहाँ भी एआई के थ्रू आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. आप जो जो प्रोडक्ट सर्व करते हो वो एआई उस पर रिकमेंडेशन सिस्टम्स के थ्रू आपको रिकमेंड करता है. एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स, गूगल ट्रांसलेट, ये भी कुछ नहीं है, ये भी एक तरह का एआई ही है. सो दिस इज हाउ वेरियस सेक्टर्स में एआई को करेंटली यूज किया जा रहा है. करेंटली जो नया टूल है जनरेटिव एआई भी जो टर्म है वो इसमें नहीं मेंशन्ड है, वो मैं बता दे रहा हूँ. जैसे चैट जीपीटी हो गया. सो चैट जीपीटी इज एन एग्जांपल ऑफ जनरेटिव एआई. सो व्हाट इज जनरेटिव एआई? बेसिकली हम एआई से कुछ कंटेंट जनरेशन करवा रहे हैं. वो कंटेंट टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कंटेंट्स कोई वीडियो क्लिप भी हो सकती है, वो कंटेंट इमेजेस भी हो सकती है. जैसे मोस्टली लोगों ने सुना होगा मिड जर्नी के थ्रू एआई होता है, उससे हम काफी इनोवेटिव आर्टिस्टिक पिक्चर्स
क्रिएट करवा सकते हैं, अपने थॉट्स हम एआई को प्रॉम्प्ट के थ्रू देंगे. जैसे लेट सपोज आई हैव गिवन अ प्रॉम्प्ट दैट अ पर्सन इज सिटिंग besides a river and there are mountains and it is evening time. So वो इस prompt के थ्रू AI एनालाइज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक ब्यूटीफुल सीनरी एज एन इमेज प्रोसेस करके दे देगा. सो दिस इज नोन एज जनरेटिव AI. बेसिकली ये आइडियाज इनपुट्स लेके आउटपुट जनरेट करता है. ये आउटपुट टेक्स्ट भी हो सकता है, ये आउटपुट इमेज भी हो सकती है, ये आउटपुट कोई वीडियो क्लिप जनरेशन भी हो सकता है. जैसे मोस्टली आप यूट्यूब में देखते हैं एनिमेटेड वीडियोस आ रहे हैं, तो वो सब एआई के ही थ्रू आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट we come to integration with robotics process automation. So as earlier, robotics process automation RPA में हम कैसे AI को यूज करते हैं. अब यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर रोबोट्स ही यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि सॉफ्टवेयर रोबोट्स में AI की हेल्प ना ले या इंटीग्रेट ना करें, ये तो इम्पॉसिबल है. सो दैट इज करेक्ट. सो RPA विद AI, यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर रोबोट डेवलप करते हैं यूजिंग लो कोड नो कोड टूल्स, यहाँ पे AI फीचर्स इनबिल्ट होते हैं. इन टूल्स में आपको AI फीचर्स मिलेंगे, जैसे कंप्यूटर विजन वी विल टॉक अबाउट. So this AI enhances the capability to perceive, adapt and cognition to learn. It allows software robots to make decisions. ये सॉफ्टवेयर रोबोट्स AI हेल्प करता है सॉफ्टवेयर रोबोट्स को डिसीजन बनाने में, एफिशिएंट बनाने में और मोर कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने में. जैसे हमने डिस्कस किया था प्रोसेस को हम क्लासिफाई कर दे रहे थे, इजी, मीडियम, कॉम्प्लेक्स. सो लेट सपोज कॉम्प्लेक्स टास्क आपको मिल गया, आप उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हो, आप उसका सॉफ्टवेयर रोबोट को नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, तो वहां पे आप एआई की हेल्प ले सकते हो. तो एआई की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स टास्क को भी इजीली करने की क्षमता रखते हैं. देन द एआई ड्रिवन व्हेन इंटीग्रेटेड विद आरपीए इज कॉइंड एज इंटेलिजेंट ऑटोमेशन. ऑब्वियसली जब आप एआई को इंटीग्रेट कर दोगे रोबोटिक्स प्रोसेस में, तो उसको हम एक नया टर्म बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट ऑटोमेशन. जिस वर्ल्ड के सामने इंटेलिजेंट आपको टेक्नोलॉजी के सामने मिल जाए, समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं एआई ही है उसमें. सो ऑटोमेशन में भी अगर हम इंटेलिजेंट वर्ड यूज कर लेते हैं, तो मींस रोबोटिक्स प्रोसेस में हम सॉफ्टवेयर रोबोट्स में अगर हम इंटीग्रेट आरपीए को एआई के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो हम उस टर्मिनोलॉजी को इंटेलिजेंट ऑटोमेशन बोल देते हैं. सो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन कहाँ यूज होता है? इंटेलिजेंट ऑटोमेशन भी सेम इज लाइक आरपीए ओनली, यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस प्रोसेस बाय कैरिंग आउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे सबको पता है डिजिटलाइजेशन चल रहा है, सो डिजिटलाइजेशन में यही सब चीजें यूज होती हैं. आई होप दिस इज क्लियर. सो जब हम आरपीए को इंटीग्रेट कर देते एआई के साथ, तो कौन कौन से हम लोग की टेक्नोलॉजीज कैसे वर्क करती हैं, सो उनका डिटेल ये दे रखा है. प्रोसेस ऑटोमेशन, जहां की हम प्रोसेस हमने बताया था कि प्रोसेस और एआई, आरपीए और एआई को हम इंटीग्रेट कर देते तो हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. लाइक रूल बेस्ड टास्क, रेपिटेटिव प्रोसेस, उनको हम एआई की तरह से इनहेंस करके एक डिसीजन कैपेबिलिटी दे सकते हैं सॉफ्टवेयर रोबोट को. लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, ये सब हम इन आसानी से सॉफ्टवेयर रोबोट्स के थ्रू एआई की मदद से इंप्लीमेंट भी करवा सकते हैं. सेकेंड, डेटा इंटीग्रेशन. डेटा इंटीग्रेशन भी हम वेरियस डेटा सोर्सेस लाइक डेटाबेस या एक्सेल या कहीं से भी आप डेटा उठा रहे हो, उसको भी आप एआई की तरफ से सीमलेस इंटीग्रेशन कर सकते हो. थर्ड इज कॉग्निटिव. कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि डिसीजन मेकिंग. सो बेसिकली दिस कॉग्निटिव वर्ड मींस डिसीजन मेकिंग. अगर आप सॉफ्टवेयर रोबोट्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग टास्क कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एआई कैन बी यूज्ड फॉर decision making within the RPA, which allows the robots to make intelligent choices and to adapt to changing condition. Fourth is machine learning. Machine learning means RPA को continuously with time improve करना. So RPA systems that leverage AI to learn and improve over time, optimizing processes and handling operations more effectively. So machine learning के थ्रू हम उसी AI को टाइम के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं. सो ये होता है मशीन लर्निंग. लोग कंफ्यूज होते हैं कि मशीन लर्निंग एआई. सो मशीन लर्निंग एआई को इनहेंस करने के लिए होता है.
फिफ्थ इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो ये सब टर्म्स बज़वर्ड्स लग रहे होंगे, तो मे बी दैट कुछ लोग ना समझ पाए, तो अभी बेसिक बेसिक समझ लीजिए. ऑब्वियसली डीप में जाने की जरूरत नहीं है. बेसिकली ओवरव्यू इतना जितना लिखा है उतना काफी है अंडरस्टूड करने के लिए. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं. इंटीग्रेशन विद एनएलपी अलाउस आरपीए रोबोट्स टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज से डील कर रहे हैं तो वहां पे हमको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम्स या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. वो सीमलेसली एआई के साथ इंटीग्रेट हो जाता है. उसकी वजह से आप ह्यूमन लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो जहां पे ह्यूमन लैंग्वेज होती है. अब यहाँ पे लेट सपोज इंडिया में हिंदी यूज होती है, इंग्लिश यूज होती है, तो आपको हिंदी में चैट बॉट्स मिलेंगे जहां पे आप अपना अगर इंग्लिश में कुछ हाय हेलो लिख के भेजोगे तो आपको रोबोट अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो और उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करेगा. सिमिलरली लेट सपोज कोई फ्रांस में बैठा है, कोई कहीं जापान में बैठा है, अब वो तो इंग्लिश नहीं यूज करेगा, तो उसके लिए दूसरी लैंग्वेज चाहिए. सो यहाँ पे यूज आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का. नेचुरल एनएलपी की वजह से हम ह्यूमन लैंग्वेजेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं और हम फीचर दे सकते हैं सॉफ्टवेयर रोबोट्स को, लाइक कस्टमर सपोर्ट्स एंड सिमिलरली चैट बॉट्स. चैट बॉट्स ज्यादातर कम्युनिकेशन में चैट बॉट्स यूज किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर रोबोट्स नहीं. सो सॉफ्टवेयर रोबोट्स और चैट बॉट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है. जो हम आरपीए में इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर रोबोट्स है. सॉफ्टवेयर रोबोट्स का एक पार्ट है चैट बॉट्स. सो चैट बॉट का बेसिकली सिंपल काम होता है और रिस्ट्रिक्टेड काम होता है कि बेसिकली वो सिर्फ कस्टमर सपोर्ट इंटरेक्शन में ही यूज करते हैं चैट्स के लिए बस. तो चैट्स में ऑब्वियसली एनएलपी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, जापानीज भी हो सकती है, चाइनीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. नेक्स्ट, कंप्यूटर विजन. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एआई इनहेंस्ड आरपीए कैन प्रोसेस इमेजेस एंड वीडियोस, मेकिंग इट यूजफुल फॉर टास्क लाइक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग. जब हम काफी हाई डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग यूज करते हैं, इमेज रिकॉग्निशन, इमेजेस वीडियोस के साथ वर्क करते हैं, तो वी यूज कंप्यूटर विजन. Next thing is scalability. Scalability means that RPA with AI should be scalable to handle a growing number of processes and data. So time के साथ हर चीज जैसे डिस्कस की थी को स्केल होना चाहिए, स्केल अप होना चाहिए, स्केल डाउन नहीं होना चाहिए. सो टाइम के साथ हम अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ एआई. एंड वी कैन ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस दैट वी यूज मशीन लर्निंग टू इम्प्रूव आवर एआई विद टाइम, सो दैट हमारे जो प्रोसेस हमने बनाए हैं वो ऑप्टिमाइज हो सके, या हमें अगर कुछ डेवलपमेंट भी करना है, कुछ चेंज भी आया, तो हम उसको क्विकली स्केल अप कर सके. नेक्स्ट इज आरपीए एंड एआई द फ्यूचर. सो दिस इज आई थिंक द लास्ट स्लाइड. सो व्हाट इज आरपीए एंड एआई फ्यूचर? सो अगर बहुत बहुत लोग होते हैं जो फ्यूचर से बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, ये टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, आगे चलेगी भी या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है. सो ऑब्वियसली सबको डाउट होता है. यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में फील्ड में है, बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो कंफ्यूज्ड रहते हैं. सो ऑब्वियसली एक फ्यूचर ग्राफ समझना भी जरूरी होता है हर टेक का. सो यहाँ पे अगर हम आरपीए और एआई की बात करें तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है. सो इवॉल्विंग लैंडस्केप, ये टेक्नोलॉजीज टाइम के साथ इवॉल्व हो रही हैं, बढ़ रही हैं. जैसे चैट जीपीटी सब देख रहे हो आप, बढ़ रही है. आगे चल के अब गूगल का बार्ड भी आ चुका है. सिमिलरली ये काम रुकेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा, ऑब्वियस है. सो फ्यूचर ऑफ आरपीए एंड एआई इज मार्क्ड बाय कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग लैंडस्केप. अगर हम आरपीए की बात करें, सो ऑटोमेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एवरीवन नोस. सो ये ऑटोमेशन भी टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है. सो विद टेक्नोलॉजी बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, एक्सेसिबल एंड इंटीग्रेटेड टू आवर डेली लाइव्स. सो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, हर एक के हाथ में आज मोबाइल है, इंटरनेट एक्सेस है. सो सिमिलरली टेक्नोलॉजी भी काफी रैपिड पेस से डेली लाइफ आजकल ऑलमोस्ट स्मार्ट वॉच से लेके हर चीज आजकल डिजिटल हो चुकी है. सो सिमिलरली हर चीज टाइम के साथ रैपिडली इवॉल्व हो रही है, चाहे हम
एआई की बात करें या आरपीए की बात करें। नेक्स्ट इज पोटेंशियल फ्यूचर ट्रेंड्स। सो अगर हम एनालाइज करते हैं ट्रेंड्स को, जैसे एनालिस्ट जो हमारे बेसिकली जब आप वर्क करते हो तो हर एक टेक्नोलॉजी के कुछ एनालिस्ट होते हैं जो जिनका काम होता है, जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया। सो वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स का क्या चल रहा है, मार्केट कैसा इवॉल्व हो रहा है। सो सिमिलरली अगर यहाँ पे फ्यूचर ट्रेंड्स की बात किया जाए तो इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन है बिटवीन ह्यूमंस एंड रोबोट्स। सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम एआई और आरपीए यूज करके ह्यूमंस को इरेडिकेट कर रहे हैं, नहीं, ये भी एक तरह का मिसकॉन्सेप्शन है। बेसिकली आरपीए इज व्हाट ऑटोमेटिंग रेपिटेटिव टास्क एंड मुंडेन टास्क, ताकि जो हमारे ह्यूमंस है वो कुछ प्रोडक्टिव, मच मोर प्रोडक्टिव टास्क कर सकें। सो ये जो है कोलैबोरेशन है ह्यूमंस का और रोबोट्स का। फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री ऐसी काम करेगी, ऐसा नहीं वहां पे सिर्फ ह्यूमंस काम करेंगे, नहीं, देख रहे हो आप अभी से एआई और ये सब चल रहा है। सो ह्यूमंस भी होंगे, रोबोट्स भी होंगे। रोबोट्स, यहाँ हम फिजिकल रोबोट्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड रोबोट्स की बात कर रहे हैं। और वो सॉफ्टवेयर रोबोट्स को किस टेक्नोलॉजी से बिल्ड करते हैं, दैट इज नोन एज आरपीए, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। इनको कंबाइन कर दिया गया। विद आरपीए एट हैंड, ह्यूमंस कैन बी एक्सपोज टू मोर प्रोडक्टिव, जैसा कि हमने डिस्कस किया, more productive, more innovative task, whereas RP and AI will handle the repetitive and mundane task. So for just your understanding, आप अपने स्मार्ट वॉच में कभी भी गूगल कर लीजिए, just go and google it, top trending technologies to satisfy your curiosity. आपको जो गूगल सर्च करिएगा टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज टाइप करके जो लिस्ट मिलेगी उसमें ऑब्वियसली अब गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा, तो उसमें आपको जो लिस्ट में नाम आएगी उसमें आप देख सकते हैं आरपीए, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, एंड एआई आर द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज इन द गूगल सर्च दैट आर लिस्टेड। एंड देन डेवलपमेंट्स, सो एक्सपेक्ट फर्दर एडवांसमेंट मेकिंग सॉफ्टवेयर रोबोट्स मोर वर्सेटाइल। टाइम के साथ सॉफ्टवेयर रोबोट्स हर जगह एक्सेसिबल हो जाएंगे, मोर वर्सेटाइल हो जाएंगे, एंड ऑल्सो कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क। इंटीग्रेटेड विद एआई, we will continue integrated with AI will continue to push the boundaries of what is possible from healthcare, innovation, banking, and many other countless domains. So right now, even if you don't know, currently RPA is being used in healthcare. We have discussed innovations, banking, and similarly, there are countless domains in real businesses. So mostly हर जगह RPA and AI आ जाएगा. So that was all about today's webinar. So thanks everyone for this session. And if there are, now we have this Q&A interaction session. So if everyone has any of their questions, they can ask, or even if they are, let's suppose, like earlier in my college, I was a shy person. So in front of everyone, like I used to get shy. And if you are a shy nature, so you can then feel free to connect me, and then you can follow on LinkedIn. So this is my LinkedIn profile, which you can see here in the screen, and you can connect me anytime if you want. And definitely if you want to ask any questions, still now Q&A interaction is open. And after this session also you can connect and ask questions anytime. No need to be take worries. Okay, so this is about the today's session. Anyone has any questions, they can ask. So Q&A session is open. Anyone, any Hello. question? Yeah, sure. Yeah, Nitin? Yeah. Hello, sir. Yeah, hi Nitin. Sir, first of all, thank you for this session. सर मेरा क्वेश्चन इसके अबाउट है, लाइक अगर हम कोई हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, yes, you are audible. हाँ सर, जैसे कि हम जैसे कि कोई भी टूल चूज कर लेते हैं, सपोज मान के चलिए हमने यूआई पाथ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? Yeah. और फिर हम बारकोड स्कैनिंग या फिर रिपोर्ट जनरेशन का कोई भी बनाना चाहते हैं, तो फॉर दैट सर इसके लिए फ्रेमवर्क चूज करने के लिए कौन से पॉइंट्स रखने होंगे माइंड में, सर वो बता दीजिए। करेक्ट। सो ये आप तब चूज करो जैसे आपने एक प्रॉब्लम डिसाइड कर ली,
कि लेट सपोज आपको इस प्रोसेस पे ऑटोमेशन करना है, सो आपने टूल चूज कर लिया, फर्स्ट दैट यू आर राइट, आपने टूल चूज कर लिया, लेट सपोज यूआई पाथ, ओके। वेरियस टूल्स आर, टॉप 3 टूल्स मैंने बता दिए हैं जो मार्केट में टॉप लो कोड जो टूल्स चल रहे हैं। फर्स्ट पे यूआई पाथ आता है, ये एनालिटिक्स होती है, हर साल लिस्ट रिलीज होती है ग्लोबली, ये ग्लोबल है रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कुछ इंडिया की लिस्ट है ये। सो ग्लोबल पे यूआई पार्ट टॉप है, सेकंड नंबर पे जो लिस्ट पे नाम है ब्लू प्रिज्म का, थर्ड नंबर पे ऑटोमेशन एनीवेयर। लेट सपोज आपने यूआई पाथ ले लिया, तो हर एक टूल के कुछ ना कुछ इनबिल्ट फ्रेमवर्क्स होंगे जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ऑलरेडी बिल्ट है वो, उनको आप यूटिलाइज करके उनकी जो उन फ्रेमवर्क्स है वो काफी डिफाइंड फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसमें हर चीज के डिटेल प्रोसेस दिया रहता है कि आपको अपने प्रोसेस को इनिशियलाइज करना है तो वो एक इनिशियलाइज कंटेनर में जाता है, आपके जो प्रोसेसिंग का मेन काम होता है वो आप प्रोसेस कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, और फिर जो आपको डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पे हम क्यूज का मदद लेते हैं। क्यूज लाइक यू नो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली जो डेटा को होल्ड करते हैं, तो आप प्रोसेस से डील कर रहे हो तो हो सकता है उस प्रोसेस में डेटा भी इन्वॉल्व होगा, ऐसा कोई प्रोसेस शायद ही कोई होगा जिसमें कोई डेटा ना यूज हो। सो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम क्यूज यूज कर लेते हैं, विदाउट क्यूज भी आप कर सकते हो, तो ये फ्रेमवर्क्स इनबिल्ट रहते हैं। वेरियस फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, जब आप हर टूल का अलग अलग फ्रेमवर्क है, तो अगर आप यूआई पाथ में जा रहे हो तो यूआई पाथ में एक फ्रेमवर्क नहीं है, यहाँ पे स्टेट मशीन है, रोबोटिक फ्रेमवर्क मिलेगा आपको, और आप खुद का फ्रेमवर्क भी अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। सिमिलरली ब्लू प्रिज्म में भी अपने फ्रेमवर्क से, ऑटोमेशन एनीवेयर भी अपनी फ्रेमवर्क्स में आता है, ये अच्छा चीज। सर, तो सर इसमें जैसे कि बता रहे थे कंटेनर करने के लिए, तो इसमें सर K8 या कुबरनेटिस का भी मतलब यूज ला सकते हैं? नहीं नहीं, ये आप क्यूबरनेटिस और ये जो इंजन की बात करो ये आप क्लाउड में यूज करते हो, यहाँ आपको क्लाउड का यूज नहीं है, यहाँ आपको ऑटोमेशन करना है, आपको ऑटोमेशन डोमेन में रिस्ट्रिक्ट रहना है। तो यहाँ पे जो कंटेनर्स की बात कर रहे हैं वो क्यूबरनेटिस नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है उनसे, ये डोमेन टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे ओके। कंटेनर का मतलब क्यूबरनेटिस नहीं है, यहाँ पे कंटेनर का मतलब है कि सिंपल एक लॉजिक ब्लॉक है। मैं वो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ये कंटेनर वर्ड हम्म, रिमूव कर देता हूँ, लॉजिक ब्लॉक्स समझ है। गया सर। ओके। हाँ, हम्म। बेसिकली यहाँ पे आप और लॉजिक डेवलप कर रहे हो या ओके ओके सर, ओके, गॉट सर। जैसे कि सर जो सिट्रिक्स ऑटोमेशन होता है, ये सर कहाँ कहाँ पे हमको यूज करना होता है, इसके बारे में और? करेक्ट। सो आपने जैसे सिट्रिक्स ऑटोमेशन का नाम लिया, सो आरपीए में जब आप ऑटोमेशन करने लगते हो तो आप जैसे नॉर्मली लोग हैं अभी बिगनर्स, ऑलमोस्ट जैसे आरपीए में तो कोई रेयर हो जिसको वर्किंग एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपने सिट्रिक्स ऑटोमेशन की बात की है, तो सिट्रिक्स ऑटोमेशन तब नीड होती है जैसे आप ऑटोमेशन कर रहे हो, आपको फेयर नॉलेज है कि ऑटोमेशन हम कैसे डेवलप करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, उसको कहाँ डिप्लॉय करते हैं। तो ये जो सिट्रिक्स ऑटोमेशन है ये इन्वायरमेंट होता है, सिट्रिक्स इन्वायरमेंट, ताकि सब लोगों के लिए ये चीज, एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, एनवायरनमेंट आपका फिजिकल मशीन भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि लेट सपोज आपने एक कंपनी ज्वाइन की तो वहां आपको फिजिकल लैपटॉप मिलते हैं, जैसे लिंक्डइन में सब लगाते रहते हैं आई हैव गॉट दिस वेलकम किट, उसमें लैपटॉप भी होगा। सिमिलरली आप कहीं ऐसी कंपनी, मेरा एक फ्रेंड था सैमसंग में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसको तो लैपटॉप ही नहीं दिया था कंपनी ने, तो अब तो वो क्या वो काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए होता है जैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं सिट्रिक्स। तो सिट्रिक्स का यही काम होता है कि बेसिकली आपकी कोई फिजिकल मशीन नहीं है, फिजिकल मशीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको एक उन्होंने मशीन, स्टैंडर्ड मशीन आपको अलॉट कर दी है, आप अपने पर्सनल लैपटॉप के थ्रू भी जैसे लेट सपोज सैमसंग का एग्जांपल है, तो सैमसंग का जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है इसको सिट्रिक्स इन्वायरमेंट कहते हैं, और इस पे अगर जो भी ऑटोमेशन करोगे आप, इसको सिट्रिक्स ऑटोमेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। ओके सर, थैंक यू सर। सिट्रिक्स इन्वायरमेंट बेसिकली वेरी सिंपल मीनिंग में वर्चुअल इन्वायरमेंट है। वर्चुअल इन्वायरमेंट आप सिंपल प्रोसेसेस का ऑटोमेशन कर रहे हो, फिर ये थोड़ा मीडियम हो गया, जैसे इजी लेवल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इजी प्रोसेस में जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं, इजी प्रोसेस होते हैं उनका ऑटोमेशन, मीडियम
और मीडियम में जैसे आते हैं सिट्रिक्स ऑटोमेशन, मतलब हमारे पास फिजिकल कोई सिस्टम नहीं रन कर रहा और हमें ऑटोमेशन करना है। अब हमारे पास कोई फिजिकल मशीन नहीं है, वो मशीन मे बी एज्योर हो सकती है, वो मशीन कोई भी क्लाउड एनवायरनमेंट हो सकता है, तो उसको एक जनरल टर्म दे दिया जाता है सिट्रिक्स। सो उस ऑटोमेशन को हम सिट्रिक्स ऑटोमेशन कहते हैं। तो वो इजी में तो आएगा नहीं, वो तो मीडियम और कॉम्प्लेक्स में भी जा सकता है सिट्रिक्स, ये चीज। थैंक यू गॉट इट सर। वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी मतलब लेवल 1 तो नहीं कहेंगे इसको, तो लेवल 2 लेवल 3 का क्वेश्चन है ये। गुड क्वेश्चन। एनीवन एल्स? कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब आपके पर्सनली कॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, केएनआईटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है आपके पास तो, या अगर कोई शाय है तो डेफिनेटली आफ्टर दिस सेशन एनी टाइम यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। सो लिंक्डइन पे मैंने आईडी शेयर कर दी है, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ इंस्टेड। सो दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। एनीवन फ्रॉम द कॉलेज इज मोस्ट वेलकम। So we can connect on LinkedIn and there also you can ask questions. So no problem. यहाँ पे आप क्वेश्चन अभी रिजॉल्व कर लेते हैं तो आप ही के लिए बेटर रहेगा, आपको टाइम ज्यादा, यहीं आपका क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा। So this is my LinkedIn profile. Anyone of you can, if you have any questions, you can just share here also. No problem in that. Any other questions from today's webinar? If anyone is not having any questions, then obviously like it was a very good interaction like I have with you all after this long time with KNIT family. So yeah, we can conclude this session. So if anyone is there from the organizing team. यस सर। Yeah. इसी के साथ आज के वेबिनार का समापन करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय और अनुभव हम सबके साथ साझा करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार से सबने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। आज के वेबिनार में हुई सारी बातें हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएंगी। मैं सर फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपने अपना बहुमूल्य समय अपने जूनियर्स को दिया। मेरी तरफ से भी थैंक्स टू एवरीवन, सारे प्रेजेंटर्स, टू द alumni cell especially, lot of thanks to the faculty members and for organizing such a webinar. Like the idea was very awesome and I would like to congratulate everyone for making this webinar a huge success. Yeah. Excuse me, sir. Yeah, sure. Sir, I want to know, will there be more session with you, like on AI and? I think that this is only this webinar has been scheduled as like you can connect with the council regarding that. So I think still this is the only session. I think maybe I don't know if any future sessions will be there or not there. But yeah, if you have that interest, anytime you can connect me on LinkedIn. That I have provided you the URL. Okay. Yeah. Thank you, sir. We will be glad to have you. Yeah, sure. If they obviously invite me another time, obviously then I will take another session on this. Yeah. But still, if there is not any session, feel free to connect on and follow on LinkedIn. Yeah. There you can contact me anytime. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay, thank you, sir. Yeah. Thanks, everyone. Yeah. Thanks, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I have Definitely, sir. We will connect you again. And once again, thank you, sir. पूरी TAC टीम की तरफ से आपको थैंक यू सर, आपने अपना
वीकेंड का कीमती वक्त सर हमारे साथ Yeah, साझा no करा। problem. Yeah, no problem, Aniket. Definitely, obviously, we will be keep in touch in future sessions also. Yeah. मैं सभी अपने जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं बताना चाहता हूँ कि टीएसी ऐसे कई प्रोडक्टिव सेशंस आपके लिए लाता रहेगा। तो आप टीएसी से जुड़े रहें और टीएसी को फॉलो करते रहें। थैंक यू सर। Okay, now we are ending this session. Thanks to all for joining the session. Yeah. Thanks to everyone. नहीं सर वो एंड कर रहा हूँ मैं।